Dear students, today we are going to start chapter 5, The 100 Races from your first flight book. There are two parts of the chapter, The 100 Races 1 and The 100 Races 2. Theme of the story, The 100 Races is first is judging people on the basis of their riches and worldly possession is wrong. कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं रिच और पुअर का या वर्ल्डली पोजेशंस होते हैं थिंग्स के बेस्ड पे कि अगर आपके पास कुछ ज्यादा चीजें हैं और दूसरे के पास नहीं है तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज रॉन्ग. सेकंड थीम इज अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव. कई बार जो दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता. डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रम हो सकता है, धोखा हो सकता है. थर्ड थीम इज discrimination faced by immigrants because they come from a different race or you can say creed. Immigrants क्या होता है कि एक कंट्री से कई बार दूसरे कंट्री में रहना पड़ जाता है और उस वहां पर जाकर अगर लोग आपको आपकी कास्ट के ऊपर या क्रीड के ऊपर रिलीजन के ऊपर जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो गलत है और ये सारे के सारे जो थीम है आपकी जो स्टोरी है उसमें एप्लीकेबल होते हैं. उसके अलावा जो लास्ट थीम है बुलिंग एट स्कूल इज नॉट ओनली ह्यूमिलिएटिंग बट डिसहार्टनिंग. स्कूल में आप जा रहे हैं फर्स्ट डे और आपको कोई टॉर्चर करता है. एक तो यू आर नॉट able to adjust the atmosphere of new school, and secondly if someone is disturbing you it is not only humiliating but disheartening. आपका दिल है वो तोड़ देता है. The main character of the story is Wanda Petronsky, who is a girl and she is the main character of the story. She faces all these things because she was of Polish origin. Polish origin का मतलब है कि she was living, her family was living in Poland. Now they were shifted to America. तो अब क्या है कि जो अमेरिकन्स हैं they at the time they did not treat Poland people in a good manner. और जो पोलैंड से आने वाले लोग थे तो उनको वो पॉलिश कहकर चिढ़ाते थे. अब जो पॉलिश वर्ड है वो एक तरह से एक अब्यूजिव वर्ड होता था. तो अब क्या था कि जब वो वहां पे जाती है स्कूल में तो स्टूडेंट्स उसको फर्स्ट डे पोलक पोलक इस तरह से कह के चिढ़ाते हैं जिससे कि वो चिढ़ती है. दूसरा क्या है कि उसका जो नेम है वांडा तो वो भी एक थोड़ा सा बच्चों को एक फनी लगता है और वो उस नेम पे भी उसको चिढ़ाते हैं. तो ऑल दीज थीम्स आर इलस्ट्रेटेड by the main character named Wanda Petronsky. Introduction of the chapter, The 100 Races. The story of the 100 Races is about a girl named Wanda Petronsky. She lived up on a hill called Boggins Heights. अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनके स्कूल के कोई भी बच्चे नहीं रहते और पुअर पीपल दे यूज्ड टू लिव देयर इन बॉगिन हाइट्स. द स्टोरी इज अबाउट पीपल टीजिंग वांडा by asking her how many dresses she had and she would say. अब जैसे कि टाइटल हमारा स्टोरी का है द 100 ड्रेसेस. अब क्या था कि वांडा ऑलवेज यूज्ड टू वेयर अ फेडेड ब्लू ड्रेस बिकॉज शी वाज पुअर. तो जानबूझ के बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड और वो उसके बदले में क्या कहती थी हमेशा शी वुड से आई हैव 100 ड्रेसेस. जानबूझ के वो कहती थी और लास्ट में स्टोरी का एक जो थीम रिवील होगा कि हाउ शी हैड द 100 ड्रेसेस व्हेन शी ओनली हैड वन फेडेड ब्लू ड्रेस. कि एक ही उसके पास ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस थी but she always used to say that she had 100 dresses. One day her dad pulls her out of class and decides that they are moving to the big city where no one would tease her.
अब फादर ने भी देखा that she was teased by her classmate. So her family, her father decided that Wanda would not live here, and they decided to shift in a city so that nobody would call her by this name Pollock, and nobody would make fun of her because she always used to wear only one dress. So let's start the summary of the story. The story is about a quiet and shy girl named Wanda Petronsky, a Polish immigrant. मैंने जैसे कि आपको बताया, quiet, she always remained silent and she was very shy, who had come to America with her family. She attended school with American children who found her name to be strange and probably the weirdest in the classroom. कि एक बेकार की चीज है, उसको एक तरफ की वो वहां से आई है. They did not treat her in a very good manner. This is because they all had easier names and her name was very complicated. She was poor and was always seen wearing a faded blue dress. Her classmates teased her because she claimed to have 100 dresses all lined up in her closet, all with always being seen wearing one. हमेशा उसको वो चिढ़ाते रहते थे कि वो एक ही ड्रेस पहनती है, लेकिन वो क्या जवाब देती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और सब लाइन में लगी हुई हैं और उसकी वार्डरोब में, उसकी अलमीरा में वो लगी हुई हैं. The ones who mainly teased her were the two best friends, Peggy and Maddie. Apart from the Wanda Petronsky, there are also two main characters, Peggy and Maddie. ये दोनों गर्ल्स उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाती थी. Peggy was the most famous girl in the school while anyone barely knew Wanda. अब क्या था कि पैगी एक फेमस गर्ल थी, सब उसको जानते थे और वांडा को कोई भी नहीं जानता था. Peggy and Maddie used to wait for Wanda before school even if it meant getting late. दोनों गर्ल्स थी जो उसके फ्रेंड्स थी. पैगी फ्रेंड्स तो क्या थी, उसको चिढ़ाती थी. They used to wait for her, और चाहे वो लेट हो जाए लेकिन वो स्कूल के बाहर खड़ी रहती और उसको आते ही, जैसे ही वांडा आती, they started making fun of her. Maddie, a poor girl herself, did not like when Peggy made fun of Wanda. However, Maddie, she was also poor, but she also made fun of Wanda because she did not like to be tortured by Peggy. अब उसे लगता था कि अगर वो पैगी का साथ नहीं देगी, जो कि स्कूल में बहुत ही फेमस गर्ल थी और बहुत ही रिच थी, तो पैगी भी उसका मजाक उड़ाएगी. तो उस मजाक को रोकने के लिए मैडी ऑल्सो कंसेंटेड विद मैडी. शी फियर्ड दैट शी कुड बी नेक्स्ट. उसे डर लगता था कि अगर वो पैगी का साथ नहीं देगी तो उसकी जो नेक्स्ट विक्टिम होगी, नेक्स्ट शिकार होगी. अभी तो क्या है कि वो सिर्फ वांडा का ही मजाक उड़ाती है, लेकिन अब वो उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर देगी. शी वांटेड पैगी, वो चाहती थी कि पैगी जो है वो वांडा का मजाक ना उड़ाए, टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा, बट कुड नॉट समन करेज टू फेस हर. समन करेज का मतलब होता है कि हिम्मत नहीं जुटा पाती थी. एज शी फियर्ड शी वुड लॉस हर बेस्ट फ्रेंड. As Peggy and Maddie, they were best friends, and Maddie did not want to lose the friendship of Peggy because Peggy was very rich and she was the famous girl of the school. However, Peggy's intention was never to hurt Wanda, but she was curious as to why Wanda had to lie that she had a underdresses in her closet. Closet का मतलब होता है उसकी जो वार्डरोब है, जो उसके कपड़े रखने की अलमीरा है. तो अब उसको ये होता है कि हालांकि वो कभी भी वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहती, लेकिन वो जानना चाहती थी कि वो क्यों झूठ बोलती है, कि किस तरीके से जो उसके पास 100 ड्रेसेस है. आप देखो 100 ड्रेसेस का जो ट्रूथ है वो लास्ट में रिवील होता है. और व्हाट वाज दिस, दैट अ पेंटिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल, and at that time Wanda did not come to school, but she sent her 100 paintings to her class teacher, and these paintings were of 100 dresses, which she used to say to her friends that she had 100 dresses. अब वो 100 पेंटिंग्स बनाती है उन सब 100 ड्रेसेस की, जो कि वो एक्सप्लेन करती है. जब पैगी उससे पूछती है कि बता तेरे पास कैसी 100 ड्रेसेस हैं, तो वो कहती है एक ब्लू कलर की है, उसपे फ्रिल है, एक रेड कलर की है. तो उन 100 ड्रेसेस का मतलब क्या था
कि वो 100 पेंटिंग उसने बनाई और शी वन दैट पेंटिंग कॉम्पिटिशन. और आफ्टर दिस बोथ पैगी एंड मैडी दे रियलाइज देयर मिस्टेक that they were humiliating Wanda and she was very creative girl. So truth about the same 100 dresses unveiled on the result day of the drawing competition. Drawing competition पे ये ट्रूथ रिवील हुआ कि 100 ड्रेसेस का क्या मतलब है. द रूम वाज लाइंड विद 100 ड्राइंग्स portraying different dresses, each so beautiful. That day she truly had 100 dresses all lined up. अब क्या था कि पूरे के पूरे रूम में वो 100 ड्रेसेस उसकी थी, बहुत ही मास्टरपीस, एक से बढ़ के एक ड्रेस थी. उस टाइम दोनों फ्रेंड्स को, पैगी और मैडी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती की. they went there where Wanda was living but they did not find. At last they felt repentance but the time had gone. They could not do anything. After that they decided that they would not tease anyone in the school. So, but in the classroom at that moment, Peggy and Maddie, who were awestruck, realized the theory of 100 dresses and felt guilty about treating her badly. और यहाँ पे एक realization सामने आता है कि काश उन्होंने ऐसा किया होता. लेकिन उसके बाद क्या है कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता अगर वो इस तरह की गलती करता है